Good morning, students. How are you all? I hope you all are studying well and doing excellent in your assessments. So, today we are going to start our next GK topic, that is our armed forces. That's your unit 3. What are armed forces? The protectors of India, जिन्होंने इंडिया को संभाल के रखा हुआ है, जो प्रोटेक्ट करते हैं इंडिया को एनिमीज से, राइट? Our armed forces. Every country needs to make sure its external and internal security. ठीक है, तो हर कंट्री को ये मेक श्योर करना पड़ता है कि उसकी जो सिक्योरिटी है वो वायबल है, टाइट है. Our country's external security is handled by Indian Army, Navy and Air Force. ठीक है, तो क्या है हमारे थ्री स्ट्रीम्स ऑफ आर्म फोर्सेस, क्या क्या है? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयर फोर्स. They are supported by coast guards, paramilitary organizations and various inter-service institutions. ठीक है, और इंटरनल सिक्योरिटी कौन करता है? Internal security is responsibility of police as well as the public, or you can say the citizens of India. The President of India is Supreme Commander. Supreme Commander means the head, जिनके order के बिना कुछ भी नहीं होगा. While the Prime Minister of nation has the executive powers. इन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स को जो भी कमांड्स देनी है, उसका जो एग्जीक्यूशन होगा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का. और वो हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कॉन्फिडेंस में लेकर ही एक्शन लेते हैं. ठीक है. Our Ministry of Defense works on countering conflicts and ensuring external security of our country. तो ये जो सारा सिस्टम है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसको हम बोलते हैं हमारा डिफेंस सिस्टम. क्या बोलते हैं? What do we call? Defense system. So obviously if we have a system, we have a ministry on top of it. तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, ये काम करती है जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो या नेशन वाइड कॉन्फ्लिक्ट्स हो, एंड हमारे नेशन की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं. The Indian Army. That's the logo of Indian Army. Indian Army is the largest branch of our armed forces. जो हमारे armed forces है उसमें सबसे बड़ी कौन सी है? Indian Army. It handles all land-based armed operations. जो भी land पे ऑपरेशन होते हैं, जमीन पे जो ऑपरेशन होते हैं, those are handled by Indian Army. It is the second largest army in the world. जो वर्ल्ड की आर्मी है उसमें ये सेकेंड लार्जेस्ट पोजीशन पे है. Our army has about 12,37,117 soldiers who are active. मतलब ये अभी भी वर्क कर रहे हैं. And we also have 9,60,000 reserve troops जो इमरजेंसी में काम आते हैं. ठीक है. The primary responsibilities of Indian Army are बॉर्डर पेट्रोलिंग, बॉर्डर पे पेट्रोल करना, बॉर्डर को मेक श्योर करना कि कोई एंटर तो नहीं कर रहा है. डिफेंडिंग द कंट्री फ्रॉम इंसर्जेंसी, एक्सटर्नल थ्रेट एंड इन्वेजन. कोई भी सिचुएशन, कोई भी बोलते हैं राइट्स, कोई भी एक्सटर्नल थ्रेट आता है, कोई भी घुसपैठिया आता है, उन सब से अपनी कंट्री को डिफेंड करना. काउंटर टेररिस्ट अटैक. टेररिस्ट अगर अटैक कर रहे हैं या हमें पता चल रहा है कि कहीं पर टेररिस्ट हैं, तो इंडियन आर्मी क्या करती है? काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस चलाती है. डू ह्यूमैनिटेरियन ड्यूटीज ड्यूरिंग कैलामिटीज. नाउ व्हाट इज कैलामिटीज? Calamities are like natural disasters, you can say flood, heavy rain, drought. What else? Yes, very good. So like tsunami, or you can say earthquake, all these are called natural calamities. So it helps and does humanitarian duties during those calamities. Assist government in maintaining internal security. कंट्री में कोई इंटरनल इश्यूज होते हैं, दंगे होते हैं, देन ऑल्सो
The Indian Army assists the government in maintaining internal security. Right now, also in this pandemic, Indian Army is helping our government in reaching various places and investigating. Okay, the Indian Navy. That's the logo of Indian Navy. India is surrounded by sea on three sides and has a large coastline. हमारे three side sea है, आपको पता है ना, Arabian Sea, Pacific Sea and Bay of Bengal. So India is surrounded by all those sea. तो हमारा जो coastline है, that is also very large. The Indian Navy is responsible to protect this large coastline and seas. ठीक है, तो इंडियन नेवी क्या करती है, हमारे इंडियन वाटर्स को और हमारी कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करती है. द इंडियन नेवी इज सेवेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड विथ मोर देन 67,000 पर्सनल. वहां पे 67,000 से ज्यादा नेवी पर्सनल है. ठीक है, एंड इट इज सेवेंथ लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड. We have more than 155 vessels. What is vessels? Ships, जो हमारे ships हैं, including the aircraft carriers INS Virat and INS Vikramaditya. ठीक है, हमारे पास दो aircraft carrier वाले vessel है, एक है INS Virat और INS Vikramaditya. बट विराट अभी आउट ऑफ अभी उसको रिलीज कर दिया गया है. वी आर नॉट यूजिंग INS विराट एनीमोर. The duties of Indian Navy include maintain a vigil of territorial water. हमारे इंडिया की टेरिटरी में जो सी आता है, इंडिया की टेरिटरी में जो वाटर आता है, उस पे नजर रखना. ठीक है, मेंटेन अ विजिल. कंडक्ट जॉइंट एक्सरसाइज विद अदर कंट्रीज टू फॉस्टर इंटरनेशनल रिलेशंस. हमारी जो इंडियन नेवी, आपने सुना होगा कि काफी कंट्रीज के साथ वो प्रैक्टिस करती रहती है. तो वो क्यों करती है कि टू फॉस्टर इंटरनेशनल रिलेशन, ताकि हमारे दूसरों देशों से संबंध अच्छे बने रहें. ऑल दोज आर फ्रेंडली एक्सरसाइजेस. असिस्ट द गवर्नमेंट इन टाइम ऑफ नीड. हमारी गवर्नमेंट को जब भी जरूरत पड़ेगी, चाहे वो नेचुरल कैलामिटी हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज हो, चाहे टेररिस्ट अटैक हो, कुछ भी हो, इंडियन नेवी विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प. Indian Air Force. That's the symbol of Indian Air Force. Indian Air Force started like it's called the youngest branch of our armed forces, and it is the fourth largest in the world. Okay, it has approximately 1,39,576 airmen along with 900 combat and 1,724 non-combat aircraft in active service. हमारे पास कितने एक्टिव एयरमैन हैं? 1,39,576. और हमारे पास एयरक्राफ्ट कितने हैं? 900 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हम फाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एंड 1724 नॉन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो अदर एक्टिविटीज के लिए, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए यूज होते हैं. देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन स्काईज. क्या करते हैं वो? इंडियन स्काई को प्रोटेक्ट करते हैं. गार्ड द नेशन फ्रॉम एरियल इंट्रूडर्स. हवाई जो इंट्रूडर्स हैं, जो एयर के माध्यम से आ सकते हैं किसी प्लेन से जंप करके या वॉटेवर, उनसे हमें प्रोटेक्ट करना, उनसे हमें गार्ड करना. हेल्प गवर्नमेंट इन डिजास्टर और कैलेमिटी. लाइक अदर टू ब्रांचेस, इट आल्सो हेल्प्स द गवर्नमेंट इन सिचुएशन ऑफ डिजास्टर एंड कैलेमिटी. Now, the next one is help in situation where army cannot reach easily through land. ऐसी ऐसी स्पेसेस होती है, प्लेसेस होती है जहाँ पे बाय लैंड पहुंचना बहुत मुश्किल होता है. तो इन ऑल दोज प्लेसेस इंडियन एयर फोर्स विल कम फॉर help. Like suppose if somebody is stuck in an avalanche on Mount Everest, then our Indian Air Force will go for the rescue mission. Okay, clear? कंपेरेटिव कमीशन रैंक. ठीक है, हम सिर्फ वहां पे क्या रैंक्स होती हैं अलग अलग उसमें, वो हम बात करेंगे अभी इसमें. आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. द हाईएस्ट रैंक ऑफ आर्मी इज फील्ड मार्शल, नेवी में है एडमिरल ऑफ फ्लीट, एंड एयरफोर्स में है मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स. ऑल दीज थ्री आर वॉर टाइम रैंक. जो वॉर के टाइम पे जब ये रैंक पे लोग आते हैं, ठीक है, जब उनको सब कुछ हैंडल करना होता है वॉर लाइक सिचुएशन में,
ठीक है। नेक्स्ट, रेस्ट ऑफ द रैंक्स आर ऑलरेडी प्रेजेंट, वो अभी भी अवेलेबल हैं। ठीक है। तो आर्मी में नेक्स्ट हाईएस्ट रैंक है जनरल, नेवी में एडमिरल, और एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल। सिमिलरली in army the next rank is lieutenant general, navy is vice admiral, and air force is air marshal, and so on. ओके, ठीक है, क्लियर। आप ये रीड करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट, field marshal is highest rank in Indian army, but it's a ceremonial और वॉर टाइम रैंक। मतलब फील्ड मार्शल जो है वो इंडियन आर्मी की हाईएस्ट रैंक है, लेकिन ये वॉर टाइम या सेरेमोनियल रैंक। टिल नाउ ओनली टू ऑफिसर्स। सोचो हमारे इंडिया को आजाद हुए कितने इयर्स हो गए, 70, राइट। तो अभी तक ओनली टू ऑफिसर्स वर एलिवेटेड टू दिस रैंक। अभी तक सिर्फ दो ही ऑफिसर्स है जो जनरल से क्या बनाए गए, फील्ड मार्शल। द फर्स्ट वन वाज फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ and second one was Field Marshal K.K. Cariappa. Okay, so the picture on the left side is Field Marshal Sam Manekshaw and the right one is Field Marshal K.K. Cariappa. Clear? Highest wartime rank in Indian Air Force is Marshal of Indian Air Force. क्या है highest wartime rank? आपको बताया था ना, Indian Marshal of Indian Air Force. तो अभी तक only one marshal has been elevated to Marshal of Indian Air Force. His name is Arjan Singh. Okay, that's the picture of the Marshal of Indian Air Force, Arjan Singh. No Navy officer has been conferred to the highest rank of Indian Navy. Indian Navy में अभी भी कोई भी highest rank पे, जो highest rank क्या है उनकी, Admiral of Fleet, उस पे अभी तक किसी को भी assign नहीं किया गया है। The current Chief of Defence Staff is General Bipin Rawat. कौन है अभी अभी हमारे डिफेंस स्टाफ के चीफ? जनरल बिपिन रावत, दैट्स हिज पिक्चर। Thank you. So go through the chapter, read again this chapter in your book, and let me know if you have any queries. Take care. Bye bye.